So Gibbs free energy depends on any of these two variables. See, over here I told that it depends on three variables. कौन से थे? Pressure, volume and temperature. But over here I didn't say that it depends on three variables. It depends on any of these two variables. The reason is that for a gas, once you fix pressure and volume, temperature fixes on its own, because pressure, volume and temperature, they are related by an equation. PV is equal to RT, right? So you can either change the pressure, you can change the volume, but you cannot change all three. Is this correct? क्योंकि जैसे आपने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर फिक्स किया, वॉल्यूम फिक्स किया, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अपने आप फिक्स हो जाता है. So G is a function of, let's say, I'm going to write that G is a function of कौन सा? Pressure and temperature. Pressure and temperature. Is okay? Yes, sir. But over here, please remember, see there, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, G depends on now. One second. G depends on pressure, temperature, but it also depends on N1, N2, N3, N4, Ni. ये क्यों? ये कौन से सिस्टम के लिए? Open system. Now this is open system. So now G depends on, G is a function of PT, वो तो था ही, right? But now your, suppose if your system has, let's say, two gases, gases 1 and gas 2. So gas 1 and gas 2. Gas 1 will have N1 moles, gas 2 have N2 moles. So G will depend on what? Pressure, temperature, N1 and N2. Is this clear? But Yes, sir. however, if your system has I components, I different substances, right? And let's say you have N1 of 1 mole, N2 of 2 moles, N3 of 3 moles, and like that, Ni of ith item. So G will be a function of, now let's see, temperature, pressure, and N1, N2, N3, N4, N5 up to Ni. यहाँ तक ठीक है? Is this clear? Yes, sir. प्लीज रिमेंबर, यहीं कहीं लिखा होगा देखो, दिस विल बी फॉर एन ओपन सिस्टम. नहीं लिखा है तो तुम लोग ध्यान रखो. For an open system, this is a variable. As soon as it is a closed system, ये जब ये, all these will be a constant, then G will be a function of only P and T. Now, I don't know if we have done this. Suppose if you have G is a function of, we have done this in SYBSC. What is DG is equal to? किसी को याद है? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में किया था हम लोगों ने. Sir, dabba. Dabba. Dabba G by dabba T. Dabba G by dabba T. And sir, At constant P or pressure. T at constant pressure. Then Plus my is equal to, sorry, dt DTO plus dabba G by dabba T at constant T. at constant volume. वॉल्यूम कैसे होगा अभी? It is P and T, right? At constant P. So it will be at, this will be dabba P at At constant constant T. temperature at D, DP. P. dp, right? ये आप लोगों ने Yes. SI में किया था. Now, instead of this, if you have these many variables, so what will be dg is equal to? Now let's write down. Dg is equal to
डाबा जी बाय डाबा टी। अब क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे? प्रेशर P कांस्टेंट and रहेगा P and N. N1 N2 अप टू Ni मल्टीप्लाइड बाय DT. dt प्लस अगला टर्म कौन सा होगा? dabba G by dabba P. डाबा P एट कांस्टेंट T Temperature and N. and टेम्परेचर N1 N2 अप टू Ni इंटू dP dP. प्लस प्लस क्या होगा? Dabba G by dabba N. N1 आएगा पहले, N1. Huh. अब कांस्टेंट क्या क्या होगा? Temperature and pressure. प्रेशर टेम्परेचर देन N2 N2 N3 Ni Ni. इंटू DN. DNi DN1 प्लस अगला टर्म कौन सा होगा? Dabba G by dabba डाबा N2. जी बाय डाबा N2 कांस्टेंट क्या क्या रहेगा? PT. N1. P N3. P2 हाँ N1 देखो अभी N2 मिस हो जाएगा N3 अप टू Ni इंटू DN2 राइट? यहाँ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म प्लस Dabba G by dabba Ni डाबा Ni at constant PT. N N1, N2, N3. N1 N2 N3 कब तक? N I minus 1 तक I minus 1. then you have DNi DNI. ये आया समझ में? How did we do this? yes sir. Okay, Yes, sir. now you can see here so dg is equal to देखो डबा जी बाई डबा टी पी एन वन एन टू डॉट 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 डी टी ये हो गया डबा जी ये डबा जी ये डबा जी ये ठीक है. Now let's explain this term. This is change in free energy Free energy. with change in temperature when you keep what constant? Pressure. N Pressure. number. N1 N2 N3 N4 dot dot dot. Okay, now can somebody define what is this term? So may I? हाँ बोलो. So the change in gives free energy with respect to dN1 at First component, constant component one. at first component at Hmm. constant temperature, pressure, and And N1, N2, not N N1, N1. N2, N3, N4 And keeping all other components constant. All other constant. components. उस component को छोड़ के. समझ में आया? मैं इसको define करूँ दोबारा. This is the change in Gibbs free energy when the first component is changed, keeping temperature, pressure, and all other components are fixed. Is okay? आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आई विल पुट दिस ऑन यूट्यूब, आप दोबारा देख सकते हो. ओके, कैन यू डिफाइन दिस फॉर मी? वेरी सिमिलर. कैन समबडी डिफाइन दिस फॉर मी? So may I? हाँ बोलो. Change in Gibbs energy when हाँ. second component is changed, keeping temperature, pressure, and all other component constant. Is okay? So I can write this term as something like this. Dabba G by Dabba Ni at constant P T N 1. in J, okay, where J is from 1 to I, I minus 1. but J is not equal to I. ये सब समझ में आया? देखो, Yes, sir. so dabba G by dabba Ni, okay, कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूं मैं? ith Last. कंपोनेंट. अब Component. कांस्टेंट क्या क्या है? देखो, प्रेशर कांस्टेंट है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट, एन जे कांस्टेंट है, जे का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, 1 से लेके आई तक, लेकिन जे और आई सेम नहीं होना चाहिए, यानी इज दिस क्लियर? दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड mu I. Now let's define what is mu I. Mu I को हम लोग बोलते हैं पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। अभी इसका ऊपर जो टॉपिक था, सो व्हाट इज दिस एंटायर थिंग कॉल्ड पार्शियल मोलर गिब्स फ्री Free and एनर्जी, और इसका दूसरा नाम है, हम लोग इसको केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? chemical potential. Chemical potential. So now डेफिनेशन है, नहीं दिख रहा, ओके, तो आप लोग केमिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन, लिखो, रेडी? जी सर। Chemical potential of a component, please remember, it's always with respect to a component, right? Chemical potential of a component is defined as the change in Gibbs free energy of the system. Chemical potential is defined, chemical potential of the ith component of a component is defined as the change in the Gibbs free energy of the system at constant temperature and pressure और ये हम लोग ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बाद में डालते हैं, सो लेट्स राइट इट। chemical potential or partial molar free energy is defined as the change in Gibbs free energy of a system on the addition of 1 mole of that component, on the addition of 1 mole of that component keeping or at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure and keeping all other components constant. लिख लिया एग्जैक्ट? Yes, sir. अभी और इसमें भी रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन देखिए, it is defined in the change in free energy of the system at constant temperature and pressure due to the addition of, यहाँ पे मोल छूट गया है, 1 mole of ith component or constituent, ये अच्छा है, to such a large quantity of mixture that the composition remains unchanged, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है। Can somebody read this and find out what is the problem with this definition? सर हाँ सर उन्हें गिफ्ट नहीं लिखे हुए गिफ्ट हाँ, सर उन्हें GIBBS गिफ्ट नहीं लिखे। नहीं गिब्स वाली बात नहीं है, फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। यहाँ पे ये लोग ने ये नहीं बताया कि बाकी कंस्टिट्यूएंट्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ इम्प्लाइड बट इट्स नॉट रिटन, राइट? व्हेन यू ऐड 1 mole of ith constituent keeping all other constituents constant, वो important है, क्योंकि तुम्हारा अगर 1 है तो 2 3 4 5 आई तक वो सब कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना, ओके? एंड मैंने अभी आपको म्यू आई बताया था तुम्हारी किताब में, उसको GI बार भी बताया, दे आर द सेम थिंग।
mu I, G I bar is all the same. Mu I or Gi bar. So this is called chemical potential or partial molar free energy. Is okay? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अभी तक हम लोगों ने 2-3 टर्म्स देखे. नंबर ऑफ फेजेस हो गया. देन यू जी हैव सर. as degree of freedom. Then you had something called as components. हम लोग ये 3 टर्म्स देखे थे. ओके जी सर. तो लोगों को मालूम है प्रोविडेंट फंड क्या होता है? किसी को मालूम प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ. मालूम है किसी को? हाँ ना. ठीक है, अब तुम लोगों को प्रोविडेंट फंड ही नहीं मालूम है तो मैं तुम लोगों को ये यूज भी नहीं कर सकता. ओके, फेज रूल इज P plus F is equal to C plus 2. तो यहाँ पे तुम लोगों को ये याद रहेगा. अगर प्रोविडेंट फंड याद रखता था, अगर तुम लोग को मालूम होता था तो ये आसान होता था याद रखने. व्हाट इज फेज रूल? P plus F is equal to C C plus 2. plus. Okay, देखो आप, let's just read this. The rule can be stated as, देखो यहाँ पे state क्या है, provided that the equilibrium between the phases is not influenced by gravitational, electrical and magnetic field, and it is influenced only by the temperature, pressure and concentration. The number of degrees of freedom of the system is related to the number of components and number of phases present at the equilibrium by this equation. F is equal to C minus P plus 2. P इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा? P plus F is equal to C plus 2. ये तुम्हारा फेज रूल है. इसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं. Now let's see this. Okay, हम लोग करने वाले. देखो ये देखो, वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वेपर. कितना फेज याद है तुम लोग को? फेज 2 phase, sir. Yes sir. कौन से फेजेस? Liquid or vapor. Liquid or vapor. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया आपका? इन दिस केस P इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट? और इसमें कंपोनेंट कितना है? 1. 1. So now if we put this, so now you have F is equal to 2 minus 2 plus 2. नहीं, गलत है. So 1 minus 2. 1 minus 2 plus 2. तो आंसर कितना हो गया? 1. 1. 1. So whenever you have an equilibrium between water, liquid water and vapor, what is the degree of freedom? 1. 1. 1. So this is something that we'll use बाद में. जैसे for example देखो, अभी ये देखिए, ice, water and vapor तीनों equilibrium में. So number of phases are 3. Component is still 1. Degree of freedom will be 0. You put this in phase rule, आपको ये नंबर मिल जाएगा. Is okay? Yes, sir. आपको सिर्फ फेज रूल याद रखना है. फेज रूल का डेरिवेशन हम लोग करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेरिवेशन. डेरिवेशन इज मोर ऑफ, इसमें इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लिखने के लिए बहुत है नहीं.
ठीक है, यहाँ पे ये लोग दे हैव स्टार्टेड विद सम मैथ्स थिंग एंड okay, let's just read this. Algebraic equation say we know to the value of n variables can be shown. Okay, देखो, suppose मैं तुम लोग से पूछता हूँ, if I have this equation, let's say 4x plus 5 is equal to 0. You have one equation, right? Can you find out the value of x? x निकाल सकते हो? -5/4. हाँ, निकाल सकते हैं, right? But if you have, let's say 4x plus 5y is equal to 0. Can you find out the value of x? Yes, sir. Okay, x का वैल्यू कितना है? No, -5y/4. हाँ, अच्छा लेकिन वैसे राजा, ये y का वैल्यू तुमको पर सर मालूम- y की वैल्यू लेना है. y नहीं मालूम ना तेरे को? यस सर. हमारे पास अभी कितने अननोन हो गए? 2. 2. 2. तो 2 अननोन के लिए एक इक्वेशन से तुम्हारा दोनों का वैल्यू निकल नहीं. सकता है? नहीं निकल नहीं सकता. तो 2 अननोन के लिए I need something like another 2x minus 4y is equal to 0. Can I find out the value of x now? Yes. sir. Can I find the value of y? Yes sir. Yes. Okay, which means if you have two unknown variables, तुमको कितने इक्वेशन चाहिए? 2. 2. If you have one unknown variable, तुमको कितने इक्वेशन जरूरत है? 1. 1. 1 So by the same logic, if you have three unknown variables, x, y, and z, how many equations do you need minimum? 2. नहीं, 2 से होगा नहीं, तुम करके देखो, 3. तुमको 3 चाहिए होगा. तुमको लगता है 2 से हो जाएगा? ये देखो, suppose let's solve this equation. Okay, how do I solve this? X plus 2y is equal to 4 and 4x plus 3y is equal to 4. How will I solve this equation? Can somebody tell me? Equation 1 minus equation 2. उससे क्या हो जाएगा? नहीं ना राजा, तो नहीं सर, मल्टीप्लाई कोई एक इक्वेशन 1 by 4 वेरिएबल वन सर माइनस कोई टू एक करेंगे. वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. हाँ, तो कैसे करेंगे वो बताओ ना मुझे. सर फर्स्ट इक्वेशन को 4 से4 मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, तो आप क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, 8x. और 8. ये 6 और ये 16 हो 16 जाएगा. 8. उसके बाद आप इसको माइनस 16. कर हाँ. दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव 5y is equal to 12. So y is equal to 12 by 4. 12/4 And once you know the value of y, I can put in any one of them and I can find the value of x. तो x और y का वैल्यू निकल गया. Okay. Likewise, if I have three variables, I need at least 3 equations to solve them. Is okay? नहीं तो तुम लोग जिसको डाउट हो रहा है, try solving this. Let's say x plus y plus z is equal to, let's say, 10. Then you have x minus 2y plus 4z is equal to 5, suppose. अब ये कितने अननोन हो गए तुम्हारे पास? 3. कितने इक्वेशन हो गए? 2. देखो, अभी आप किसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कैन यू कैंसिल बोथ टू ऑफ देम? क्योंकि अभी आपको, इफ यू वांट टू फाइंड आउट लेट्स से वैल्यू ऑफ z, तो कम से कम x और y कैंसिल हो जाना चाहिए ना. Yes sir. Yes, sir. तो आप किसी भी नंबर, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके x और y दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकते हो. सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2y हो जाएगा, 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x का क्या हो जाएगा? नहीं होगा सर. x बच जाएंगे. इसका मतलब है
if you want to solve 3 variables, how many equations do you need? 3. 3 3. Minimum 3. minimum. 3 से ज्यादा हुआ तो अच्छा ही है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, सिमिलरली इफ 3 equations are available, the relation, then you can solve for x, y and z. Is okay? However, if you have only 2 equations and 3 variables, उसका solution हो सकता है? नहीं. No, sir. नहीं, the complete solution is not possible. इसका मतलब है, now to calculate the number of independent variables, the following relationship may be used. Number of independent variables is equal to number of variables minus number of available equations. Okay, अभी आप देखिए इसका मतलब क्या है. Suppose I have this x and y, 3x plus 5y is equal to 7. कितने वेरिएबल्स हुए? How many variables are there? 2. How many independent variables are there? 2. नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारे पास एक है. 1. क्योंकि सपोज तेरा, देखो, सपोज तेरे को x का वैल्यू मालूम हो गया, x का वैल्यू फिक्स किए, ओके, y का वैल्यू अपने फिक्स हो जाएगा कि वो चेंज होता रहेगा? अपने आप फिक्स हो जाएगा. अपने आप फिक्स हो जाएगा. देखो, तो हालांकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स 3. 5. इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2. 2. 2. उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 1. 1. एंड नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 1. 1. राइट. सो can you solve this when you have 2 variables, 1 independent variable and 1 equation? Can you solve this? No. No, the solution is not possible. Okay, so now let's put this here. लेकिन अगर सॉल्व होता है, नहीं होता है, जाने दो. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे कितना था? 1. 1. Now let's find out this number. What is number of variables? 2. 2 minus number of equations available was 1. 1. 1. 1. तो आंसर कितना आ गया? 1. 1. 1 आ गया. ये आया कि नहीं अपने आप? हाँ. Yes, sir. So from this we can make out that the number of independent variable is equal to number of variables minus number of available equation. दोबारा और एक बार करके देखना है. लेट्स से तुम्हारे पास ये 3 इक्वेशन है. सो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हो गए? 3. 3. ओके. इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है. एंड नंबर ऑफ 2. वेरिएबल्स कितना है? 3. नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है. नंबर ऑफ, देखो, सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो गया हमारे पास? 3 हुआ. सर, हाँ सर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक बार समझा दो. हाँ, एक मिनट रुको. इसमें देखो तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन है? 3. 3. ओके, तुम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो? हाँ. सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इसका मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू तय है कि तुम जो मन में चाहे डाल सकते हो? तय है. तय है. y का वैल्यू, तय है. z का वैल्यू फिक्स्ड है. फिक्स्ड है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसका वैल्यू तुम अपने आप डाल सकते हो.
तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए इसमें? 0. 0. लेकिन लेट्स फाइंड आउट दिस नंबर इक्वेशन से 0 आना चाहिए. हाउ मेनी वेरिएबल्स डू यू हैव? 3. 3. 3. How many equations you have? 3. 3. So what is the number of independent variables? 0. 0. Yeah. हाँ Okay. अभी तुम क्या पूछ रहे थे बेटा? सर, वही कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 कैसे 2 कैसे आया? Okay. अभी देखिए, अभी let's solve another equation. Let's say अभी सिर्फ ये इक्वेशन. ओके, यहाँ नहीं. fx plus 2y is equal to 7. Okay. Now let's talk about number of variables. कितने हुए? 2. 2, 2. 2. Number of equations कितना है? 1. 1. Now let's try solving this. What is the value of x? गिवन. नहीं, इसको सॉल्व करके बताओ ना, x का वैल्यू. 7 minus 2y 2y divided by 5. 5. 7 minus 2y divided by 5. इसका पूरा सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है. तो अभी हम लोग इसका अगर लाइन खींचना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? विल पुट समथिंग लाइक दिस. x का वैल्यू, y का वैल्यू. y का वैल्यू हम लोग अपने यहाँ से डाल देंगे. y का वैल्यू 0. x का वैल्यू कितना हो गया? कुछ तो आएगा. 7/5. ठीक है ना, जो भी आया. Yes, y sir. का वैल्यू 1. x का वैल्यू कुछ तो आएगा. Yes, sir. तो आप ये, हालांकि तुम्हारे पास वेरिएबल्स हुए 2, इसमें से तुम कितने का वैल्यू अपने आप चेंज कर सकते हो? 1. एक का, या तो x का या फिर y का. लेकिन आप देखोगे कि जैसे x फिक्स हो जाता है, y, फिक्स्ड हो जाता है. जैसे y फिक्स हो जाता है, x, फिक्स हो जाता है. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हुआ? 1. 1. 1, तो देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस इज 1. सो द आंसर विल बी 1. आया? Yes, sir. लेकिन यहीं पे अगर तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, देखो 9x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 13. इसका पूरा सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है? है. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए? 2. 2. इक्वेशंस कितने हो गए? 2. 2, 2. इसमें x और y का वैल्यू तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो? नहीं. नहीं. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया? 0. 0. 0, वही आ रहा है. 2 minus 2 is. 0. अभी आया समझ में? Yes, sir. So from algebra we can find out, we can write this equation, that number of independent variable is equal to number of variables minus number of available equations. Is okay? Yes, sir. Okay. yes sir. Again I am going to put this on YouTube. नहीं समझ में आया तो दोबारा जाके देख लेना. मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा. हो जाएगा? जी सर. आगे करते हैं. अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं. इन फेज रूल द एम इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस एंड फ्रॉम द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. नाउ लेट्स से फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम, एक वन कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल बताएंगे. वन कंपोनेंट सिस्टम यानी क्या क्या होगा? Water and लेट्स से vapor. water in equilibrium with vapor, right? कितना कंपोनेंट है? 1, 1. 1. right? The two independent variables are pressure and temperature. देखिए अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ. Now you have, let's say, liquid water which is in equilibrium with
water which is in the vapor state. अब ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, या ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? पहले बताइए, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना. देखो, सपोज इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज दिस? Liquid water. Liquid water. And do you have something here? Do you have something here? Vapors. This is the vapor. कौन ज्यादा रहेगा? Liquid water. क्यों? Room temperature है इसलिए. कि temperature is 25 degree centigrade. Is it clear? Suppose you have the same thing at, let's say, 90 degrees. दोनों रहेंगे? Yes, sir. कौन ज्यादा रहेगा? Vapor. पहले के मुकाबले में. Vapor ज़्यादा रहेगा. अब पहले के मुकाबले में आपके लिक्विड कम हो जाएंगे, वेपर बढ़ जाएंगे. तो हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर का कंपोनेंट बढ़ गया. गया. लिक्विड का कंपोनेंट कम हो गया. कम हो गया. सो इफ यू हैव वन कंपोनेंट, ओके, उसमें दो वेरिएबल्स हैं जो आप अपने आप चेंज कर सकते हो, वो है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर. इज दिस ऑलराइट? अब देखो, यू हैव दिस टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, इसका तुम प्रेशर भी चेंज कर सकते हो, उसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली. ऐसा नहीं कि तुमने प्रेशर चेंज कर दिया तो टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो गया, या टेम्परेचर चेंज कर दिया तो प्रेशर अपने आप फिक्स हो गया, ऐसा नहीं. सो व्हेन यू हैव वन कंपोनेंट सिस्टम, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स you have? Two independent Which are pressure and temperature. temperature. Suppose one phase contains two components. यानी let's say solution of molten metal. क्या क्या है तुम्हारे पास इसमें? इस सिस्टम में तुम्हारे पास क्या क्या है? You have molten. Molten copper and molten zinc. तो फेज कितने हुए? एक. You have one phase. समझ में आया? कंपोनेंट कितने हुए? दो. अब कंपोनेंट दो हो गए. तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए? नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, वो तो रहेगा, एंड यू नीड द रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन. So how many independent variables you have now? 3. 3. Is okay? Now, if you Yes, have, sir. now let's say one phase, 3 components. So how many independent variables you'll have now? You'll have pressure, you'll have temperature, and you'll have concentration 1 and concentration 2. तीसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा. Is this okay? देखो हम लोग मोल, let's talk of mole fraction. What is mole fraction? याद है किसी को? x1 is equal to x1 is equal to n1 upon n1 plus n2. अगर आप तुम्हारे पास 2 है तो हाँ. अभी तुम्हारे पास x1 plus x2 क्या होता है? Total One. x 1 sorry. 1 होता है. इसका मतलब है तुमने x1 फिक्स किया, x2 जो है अपने आप फिक्स हो जाता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है? Dependent. Dependent है. So now let's see here. If you have, अभी देखो, you have one phase, okay, 2 components. What are the independent variables now? Pressure है Temperature. और कितना concentration? 1 कि 2? Ratio. Concentration. Ratio. ये 1 concentration ना, क्योंकि तुम्हारा जैसे मोल फ्रैक्शन, 1 मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा मोल फ्रैक्शन इज Dependent.
dependent. So now if you have one phase and three components, how many independent variables you have? Pressure, temperature, and 2 concentration. Pressure, temperature, and 2 concentration. Is this clear? So, So if you have, let's say, one phase and C amount of concentration, a C amount of component, how many independent variables will you have? Pressure or temperature, Temperature, temperature or C concentration. कितना? -1. C minus 1 independent variable. ये is this clear? ये आया समझ में? कैसे आया बोलो. You need to say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. So now let's again do this. देखो एक मिनट रुको. Okay, देखिए. Let me write again. Now this is number of phase, number of component, and number of independent variables. Independent variables. ठीक है? Now you had शुरू में क्या बताया था मैंने? One phase, two component. Independent variable कौन सा था? Pressure and Pressure, temperature, temperature. Temperature. Now you have two components, right? So you need one Concentration. Now if you have, let's say, one phase, three components, independent variable कौन से थे? pressure, temperature, and Pressure, 2 concentration. Pressure, temperature, concentration 1 and concentration 2. आया समझ में? So now Yes. let me call this P, T, and 2 concentration terms. Is okay? So now if Yes, you sir. have one phase and X component, तो कितने independent variables होंगे? Pressure, temperature, Pressure, temperature, or how many concentration component? X -1. X minus 1. क्या है समझ में? Yes, sir. Now instead of Yes, sir. saying X, if I say C component, तो कितना हो जाएगा? कितने independent variables हो जाएंगे? pressure, Pressure, temperature, P minus Pressure, 1. -1. temperature, or C minus 1 concentration terms. Okay? Yes, sir. Now this is Yes, for sir. one phase. Now if you have, let's say, two phase and ये उतना ही रहा, so this will become pressure, temperature, and this will be multiplied by 2 times C minus 1. So if you have P phases and C concentration, C component, how many independent variables will you have? Pressure, Pressure and temperature. temperature, and P times C minus 1. -1. This is okay? देखो यहाँ पे जब एक फेज था तो दिस वाज मल्टीप्लाइड बाय 1. जब दो फेजेस हुए तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2. 2. पी फेजेस होंगे तो कितने क्या हो जाएगा? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, ये गलत है, पी फेजेस हुए तो इज इट ओके? Yes, sir. Okay, now let's read from the book. See, हो गया. For a one component system, two independent variables are pressure and temperature. Suppose one phase and two components are there. Okay, तो हमारे पास तीन independent variables हो जाएंगे. तो you have three additional नहीं होगा. Three independent variables come into picture. कौन से? Pressure, temperature और उनमें से component में से एक का concentration. So if a phase contains three components,
two concentrations must be known so that the third is fixed. Is this clear? Yes, So sir. if a phase is in general, if you have one phase and C components, how many concentration independent variables will be there? C minus 1. C minus. Minus. But if you have, instead of one phase, if you have P phases, so number of independent variables, the number of independent concentration variable will be P into C minus 1. C minus 1. P into C minus 1. लेकिन हमारा वो प्रेशर और टेम्परेचर तो अभी है ही है. So what will be the number of total number of independent variable will be P into C minus 1 plus 2. ये कहाँ से आया? Pressure and temperature. ये प्रेशर और टेम्परेचर. Is this clear अभी तक? So what is this Yes. term? Yes, sir. What is this term? Total number of independent variables when P phases having C components are there in equilibrium. Problem? नहीं है? प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. ओके. No. तो अभी हम लोग दूसरे इस पे जाते हैं. Now, if you want to have all phases in equilibrium, okay, equilibrium का ये है कि what is the condition for equilibrium? तुम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, what is the condition for a spontaneous process? याद है किसी को? What is the condition for a spontaneous process? What is a spontaneous process? So energy must be high. नहीं रजा. Sir, Delta G is Negative. negative. If delta G is negative, the process is, Spontaneous. and if it is positive, Non-spontaneous. and if it is zero, Equilibrium. equilibrium. So what is the meaning of delta G is equal to 0? It means G1 should be equal to G2, G2. right? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for all the phases, कितना phases है पता नहीं. अगर तुम्हारे पास दो phases हैं, let's say अल्फा फेज एंड बीटा फेज, अगर उन दोनों को इक्विलिब्रियम होना है तो तुम्हारे पास क्या कंडीशन है? जी अल्फा शुड बी इक्वल टू G beta. G beta. अगर ये हुआ तो इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं हुआ? हुआ. हुआ. होगा. यहाँ पे we'll put partial molar because it's an open system. Okay, so now let's read this. If you have all the phases to exist in the form of equilibrium, it is essential that their partial molar free energy of all the components should be the same. Is okay? So now, now if you have one component, जैसे अभी मैंने पानी और वेपर के बारे में बात की, राइट? कितने फेजेस हुए? लिक्विड, वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वेपर. कितने फेजेस? 2. 2 phases. नंबर ऑफ कंपोनेंट? 1. 1. तो मैं अभी कंपोनेंट को फिक्स रख रहा हूं. फॉर वन कंपोनेंट यू हैव 2 फेजेस, राइट? तो इसके कंडीशन क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम हुआ तो G of L should be equal to G of V. G of V, right? Now, instead of this, if you have now 3 equilibrium, अभी कितने फेज हो गए? 3. कंपोनेंट कितने? 1. अभी भी एक.
how many equilibrium do you need? Do you know 2 वो equilibrium? हाँ, कौन सा GL E is equal to is GV, equal to GV and GV is equal to GS. GV is equal to GS. देखो मुझे GL और GS करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी सेम ही हो जाएंगे. So how many equations do I need? 2. 2. 2. Is it okay? जी So सर if you have, So, let's say, one component and p phases instead of 3, how many equilibrium will you have? देखो 2. p minus 1 ना. देखो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ फेजेस कितने थे? 3, राइट? तो मुझे कितना इक्विलिब्रियम लगता था? 2. 2. 2 देखो अभी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? 2. 2 2. तो मुझे कितना इक्विलिब्रियम मिलता था? 1. 1. 1. तो अगर एक कंपोनेंट और p फेजेस हो तो कितने इक्विलिब्रियम होंगे मेरे पास? P minus 1. p minus 2. 1, ठीक है? But that is for C one component. But if you have C component and P phases, you'll have C multiplied by P into P P minus. minus 1. Is okay? Yes, sir. जी सर Let's now read this. For the same component to be present, अगर ये तुम्हारे पास 3 phases हुए तो how many equilibrium? देखो, you need 2 equations. G alpha is equal to G beta and G alpha is equal to G gamma. Beta और gamma अपने आप fix हो जाएगा. So for P phases at equilibrium, we can write P minus 1 equations for one component. But if you have C components, how many, and each containing P phases, how many equations do you need? C multiplied by P minus 1. ये दो इक्वेशन समझ में आ गया? We are almost done. Now I have to just connect them and we are done. What is this? ऊपर वाला ये जो टर्म है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म है. Number of independent variables. Okay. And what is this term? Number of equations. Yes sir. Okay. Now, so ये देखो यहाँ पे number of independent variable is equal to number of variables minus number of available equations. ये हम लोग कर चुके हैं. Yes sir. Okay. Now let's just substitute them here. तो ये क्या हो जाएगा देखो. So number of independent variable f is equal to number of variables क्या है? It is P multiplied by C minus 1 plus C minus 1 plus 2. हमारे पास So कितने that is independable variable, no? Independent variable. No, this is total number of variables. This is not correct. It's total number of variables, not independent variables. हाँ. Okay. So number of independent variable is equal to total number of variable, जिसकी जगह पे ये आ जाएगा पी सी माइनस 1 प्लस 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इज सी पी माइनस 1. सो नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस. तो ये क्या हो जाएगा? पी सी माइनस पी प्लस 2 माइनस पी सी प्लस सी इज इक्वल टू इधर एफ है. सो यू सॉल्व दिस, आपको क्या मिल जाएगा? C minus P plus 2. ये कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2. दिस कॉल्ड फेज रूल. नाउ फ्रॉम योर, अभी तुम्हारे एग्जाम कैसे होंगे पता नहीं. अगर तुम्हारा नॉर्मल एग्जाम हुआ तो यू डू गेट क्वेश्चन डिराइव फेज रूल करके. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. जो एग्जाम है
यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ये जो है ना, ये पार्ट हम लोग करेंगे विद दिस अलजेब्रा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेके आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस लेके आएंगे, एंड we'll use this formula directly to get the phase rule. ओके, जी सर। ये तुम्हारा फेज रूल हो गया। एंड एक्चुअली एक बहुत बड़ा ये पार्ट हो गया। नाउ तुम्हारे ये चैप्टर अभी खत्म होने को आ रहे हैं। अभी आपको वी नीड टू टॉक ऑफ समथिंग कॉल्ड एज वाटर सिस्टम। देखो ये सब जो है किस हेडिंग में आएगा, वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम में देखिए हमारे पास क्या क्या है। नाउ यू हैव टू सिस्टम, एक वाटर और एक सल्फर आएगा। ये वाटर है और ये सल्फर। ओके, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग ऑनलाइन है, सो विल नॉट यूज दिस डायग्राम, विल यूज अ डायग्राम विच इज फ्रॉम इंटरनेट। ओके, तो मैं वाटर फेज डायग्राम, ऑलराइट, मैं चलिए ठीक, हर किताब को ही देखते हैं, कुछ नहीं। देखिए हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, 1, 1. Now let's write down C is equal to 1. How many possible phases are there? 3, 3. कौन से? ice, water, vapor. Ice, water and vapor. Okay. देखिए we're going to draw a graph of temperature versus pressure. इस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। Now this graph consists of, देखिए how many areas? You have this one whole area, second area, third area, right? You have how many lines? 3. यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, और एक डॉटेड लाइन है यहाँ पे, and you have one point here. Okay, now if you remember, when you have an area in a graph यानी आपके पास you have two variables, कौन से x और y. X and Y. ओके, इसमें से आप कौन से चेंज कर सकते हो एरिया में? एक वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। एक के दो? एक। नहीं रजा, आप दो चेंज कर सकते हो। देखो ये एरिया है, यहाँ पे तुम्हारे x का वैल्यू ये है, जैसे x का वैल्यू ये डिसाइड किया, y का वैल्यू ये है, बट इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ y, ये पॉइंट उसी एरिया में है कि नहीं है? हाँ सर है। So if you have an area out of x and y, what all can you change? बोथ। Both. Right? If you have a line,
Out of x and y, what can you change? Any one. You can change only one. क्योंकि अगर x फिक्स हुआ तो y अपने आप फिक्स हो जाता है, y तुमने फिक्स किया तो x अपने आप फिक्स हो जाता है। ये देखो इस लाइन पे देखो, सपोज इस लाइन में तुमने x का वैल्यू ये फिक्स किया, y का वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो? नहीं। नहीं। And if you have a point, Non-variant. non-variant. So this is Non-variant. areas are bivariant, lines are monovariant, points are Non-variant. non-variant. Now let's see here. Now areas are denoted by one phase. Water है देखो. How many phases here? One. 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 How many phases here? One. How many phases here? One. इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका मतलब क्या है। सपोज तुम्हारे पास लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर, ओके। नाउ यू हैव दीज टू, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तुम इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो? पानी का तुम टेम्परेचर चेंज कर सकते हो? Yes, Yes. sir. थोड़ा सा हीट किया, पहले 25 डिग्री था, उसको तुमने बढ़ा के 40 डिग्री किया, तुम्हारा लिक्विड वाटर ही रहेगा कि किसी और इसमें चेंज हो जाएगा? Liquid water. Liquid water रहेगा। So your phase does not change when you change the temperature. Temperature. And normally you have, let's say, pressure is 1 atm. If you change it to, let's say, 1.1 atm, पानी वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? वही रहेगा। पानी वही रहेगा। So which means if you have liquid water, please remember, मैं ये जो चेंज है मेरे मन मर्जी, यानी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ विद इन अ लिमिट, बट आई कैन चेंज द टेम्परेचर एंड आई कैन चेंज द प्रेशर। ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। आप लोग किताब में ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ना, तुम्हारे किताब में चेंज करो, मेक दिस इस ग्राफ का कंटिन्यूएशन। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? अभी ये देखो, Curve ना sir? हाँ ये लाइन और ये कर्व अलग अलग कर्व का हिस्सा दिखता है ना, या तुमको एक ही कर्व का हिस्सा दिखता है? ये और ये एक ही का हिस्सा दिख रहा है तुमको? हाँ, अलग sir. दिख रहा है सर। अलग कैसे दिख रहा है? सर वो वहां से ही ज्वाइन हो रहा है। क्योंकि ओ पे ऐसा टूटा ऐसा लग रहा है ना तेरे को, ये ऐसा है और ये ऐसा है, देखो। Yes, sir. तो ये तुमको क्या करना है, ये एक कर्व का हिस्सा बनाना है ऐसा, और ये ओ पॉइंट कहीं तो हो, ऐसा कहीं तो ओ पॉइंट होगा, लेकिन ओ पॉइंट से पहले और ओ पॉइंट के बाद में तुम्हारा ये जो है एक ही कर्व का हिस्सा दिखना चाहिए। तो आप इसको जरा चेंज करो। करेंगे कैसे, कैसे चेंज करेंगे फिर? इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो कर्व है इसको कंटिन्यू करो उसी डायरेक्शन में। कर सकते हैं आप लोग ऐसे? अभी देखो ये दोनों एक ही हिस्सा लग रहा है, Yes, sir. जी सर। और इसको डॉटेड करो ऐसे। ये तुमको ये करना पड़ेगा ऐसे। ओके, दूसरा, ये जो 346 374 है, दिस शुड बी एट द एंड ऑफ द ग्राफ। इस पॉइंट को 374 करो, यहाँ को इस बीच में कहीं पॉइंट को नहीं। 374 को क्या करेंगे, अभी तुम्हारे पास दो तरीके, या तो तुम
इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहां लेके जाओ ऐसे, या फिर ये पार्ट हटा दो, ये कर्व का ऊपर वाला पार्ट हटा दो। कर्व कहां पे खत्म होना चाहिए? 374 और 220 पे खत्म होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तुम लोग क्या करने हैं? यस सर। जी सर। इस लाइन के बाद, पॉइंट के बाद कर्व नहीं होना चाहिए। इज ओके? जी सर। ओके, Yes, sir. अभी हम लोग समझते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ग्राफ यहीं पे किया। और तीसरी बात, ये ग्राफ, ये जो पॉइंट है ना, ये जो सी वाला जो पॉइंट है, तुम्हारा ग्राफ को जहां तक बॉर्डर आता है वहां तक लेके जाओ, ऐसे ऐसे बीच में रोको मत, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये भी कोई पॉइंट है वहां पे खत्म हो जाता है, ये पॉइंट एक्चुअली खत्म ही नहीं होता। तो ये जो लाइन है, तुम्हारा ग्राफ जहां तक ग्राफ को बॉर्डर आता है वहां तक लेके जाना। हो गया? जी सर। जब एग्जाम में बनाएंगे, प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन हैज टू हैव अ स्लाइट नेगेटिव स्लोप। ये चलेगा, एक्चुअली ऐसा बनाए तो भी चलेगा, ऐसा बनाए तो भी चलेगा, ऐसा बनाए तो भी चलेगा, ऐसा बनाए तो नहीं चलेगा क्यों चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये वाला सर, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नहीं लगा, ये कहाँ नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो सपोज, गया। हाँ सर, False. सॉरी। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है तुम्हारा, नेगेटिव स्लोप का लाइन होना चाहिए। ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चल, कैसे भी बनाओ वो तुम्हारी मर्जी है, दैट्स ऑल फाइन, बट यू कैनॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन और लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप। ओके? जी सर। तो अभी हम लोग इसको, लेट्स से, हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। नाउ दिस हैज 3 एरियाज। हाउ मेनी एरियाज? 3। 3। देखो अभी एरिया का नाम बता देते हैं। फर्स्ट एरिया इज ए ओ सी। एरिया ए ओ सी डिनोट्स विच फेस? वेव, आइस। आइस, आई। नाउ एरिया सी ओ बी डिनोट्स विच फेस? वाटर। वाटर, एंड एरिया ए ओ बी डिनोट्स विच फेस? वेपर। वेपर। अभी हम लोग ये देखते हैं ये आता कैसे। अभी सपोज, अभी जो हमारा जो नॉर्मल है, हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, ठीक है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 1 एटीएम मानते हैं। नाउ दिस इज 1 एटीएम, राइट? व्हाट इज द टेम्परेचर हियर? नाउ लेट्स से, देखो ये तुम्हारा, आप लोग ये करो, यहाँ से एक लाइन नीचे खींचो, आप लोग खींचो इसको यहाँ पे, और इसको 0 डिग्री करो। ये जहाँ पे ये कटता है, इसको हम लोग कौन सा डिग्री मानेंगे? 0 डिग्री। देखो, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 0 से कम है कि ज्यादा है? 0 से कम है। तो उस समय पानी किस फॉर्म में रहता है? आइस आइस। देखो Ice. तो ये आइस है कि नहीं है। है? ओके, थोड़ा सा हीट किया, लेकिन अभी भी 0 डिग्री से कम है, तो तुम्हारा किस फॉर्म में रहता है? आइस, आइस। Ice. तो हीट करते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो तुम्हारा वाटर कौन से फॉर्म में है? आइस, आइस। किस फॉर्म में वो वाटर, लिक्विड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाता है? 0 डिग्री पे। तो ये तुम्हारा 0 डिग्री है। देखो 0 के ऊपर देखो, हीट किया, तो अभी वाटर किस फॉर्म में? H2O किस फॉर्म में? वाटर, अभी ये देखो, ये सही है, वाटर है। समझ में आ रहा है? जी सर। और ये वेपर कब पहले बार ये करेगा?
इक्विलिब्रियम पे जब 100 पे आ कौन जाएगा। सा टेम्परेचर? हाँ, तो ये 100 तीसरा ये गलत है. दिस 100 इज नॉट हियर, 100 इज हियर. दिस इज 100, नॉट दिस. 100 पे तुम्हारे पास किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा? वाटर एंड वेपर। और 100 के ऊपर हो तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा? वेपर में ही रहेगा। तो 100 के ऊपर देखो वाटर किस फॉर्म में है? ये सब वेपर है. वेपर. समझ में है? Yes, sir. ओके. अभी हम लोग वी ऑलवेज मैंने आप लोगों को एफ एस वाई में भी बताया, अगर हम लोग ने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इसको याद है? व्हाट इज कम बॉइलिंग हो पॉइंट? जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो क्या था? Come. नहीं, व्हाट वाज बॉइलिंग पॉइंट? डेफिनेशन. Boiling point is the temperature at which At which the Vapor, vapor pressure and the external pressure are equal. हाँ. वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर. तो हम लोग ने जब प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम. नहीं, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है. देखो, तो यहाँ पे देखिए, सपोज 1 atm की जगह पे लेट्स कॉल इट, लेट्स से दिस इज 1.5 atm. देखो, आइस कौन से टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा वाटर में? जीरो से कम में कि जीरो 0 से ज्यादा? कम। जीरो से कम में. देखो, दिख रहा है? लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या हाल है? 100 से 100 से ज्यादा. ज्यादा है. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे प्रेशर बढ़ाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का कम फ्रीजिंग होता पॉइंट है. कम होता है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. बढ़ता है. अगर मैंने प्रेशर कम किए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. कम हो जाता है। इज दिस ऑलराइट? Yes, sir. So this phase diagram has 3 phases. कौन से? आइस वाटर Ice, वेपर। Ice, water, vapor. water and vapor. Now, how many components do we have? 1. 1. Now, in these areas, how many phases we have? In each area. 3. In each area, how many phases we have? इस एरिया में कितने फेज है? 1. 1. इस एरिया में कितने फेज है? 1. 1. 1. So in each area we have 1 phase. Now let's find out my phase rule से degree of freedom. क्या था? Degree of freedom is equal to C minus P plus 2. Plus 2. Now let's 2. put this 1 minus 1 plus 2. What's the answer? 2. 2. Which means within this area I can change in a certain limit pressure and temperature. आपका ice ही रहेगा. Is this clear? Within this area मैंने प्रेशर थोड़े से चेंज किए, टेम्परेचर थोड़े से चेंज किए, मेरे फेज चेंज नहीं होंगे. So on all these areas, what is the degree of freedom? 2. I can change 2. both pressure and temperature. Is okay? Yes, sir. Okay. How many lines I have? Now I have the first line is OC. OC के इधर क्या है? Ice. आइस. OC के राइट हैंड साइड में क्या है? Water. Water. तो OC पे किसका किसका इक्विलिब्रियम है? Water और ice का. वाटर और आइस का. What is that process when ice converts into water or water converts into ice? हम उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर
freezing point. fusion. Okay, so OC line. Okay, हर एक line पे how many phases you have? 2. 2. Now you have C is equal to 1, P is equal to 2. अभी F कैलकुलेट करेंगे, आप लोग करके देखो, F 1. will become 1. इसका मतलब है अगर तुमने टेम्परेचर फिक्स किया तो प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाएगा, तुमने प्रेशर फिक्स किया तो टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो जाएगा. यू कैन नॉट चेंज बोथ. Okay, so OC is which line? Equilibrium between? Ice and water. Okay. Water. OB will be? Equilibrium between water and vapor. उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं. वाटर से वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन ना. Yes, sir. एंड व्हाट इज sir. OA line? Sublimation. Sublimation. So on each line, the number of each line will be how many variant? 1 variant. Monovariant. Unit. Yes. And you have 1 point. इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे you have ice, water and vapor all in equilibrium. इसका टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, इसका प्रेशर भी फिक्स्ड है. ये सही है. ये एटीएम नहीं है, ये मिलीमीटर है. 4 पॉइंट. क्योंकि ये एटीएम कैसे होगा? 1 एटीएम ऊपर है और 4 नीचे कैसे होगा? ग्राफ में जो नीचे होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा. छोटा. तो 1 एटीएम ऊपर है तो नीचे 4 एटीएम होगा क्या? नहीं सर. तो ये एटीएम नहीं है, दिस इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विच इज लेस देन 1 एटीएम. क्योंकि 1 एटीएम इज नथिंग बट 760 मिलीमीटर. तो 4 एटीएम उसके नीचे आएगा, वो सही बात है. सो नाउ यह 1 पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट में किस किस का इक्विलिब्रियम है? Ice, water and vapor. सो नंबर ऑफ फेजेस विल बी 3. 3. 3. कंपोनेंट अभी भी 1 है. डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग कैलकुलेट करके देखो, 0 है. So it is a non-variant. Now last part is you have this OD. OD is a meta equilibrium. Okay, it is between ice and water. लेकिन मेटा इक्विलिब्रियम वो आराम से डिस्टर्ब हो जाता है. Now let me just read and we are done in the next 2-3 minutes. देखो, तो आप लोगों को ये ग्राफ बनाने आना चाहिए. एरियाज कितने एरियाज है? 3. 3 areas. To the left of OC curve, to this, यहाँ पे ice है. Right of OC curve and above is liquid water and below OA and this is water vapor. कितने curves? 3. 4 curves. एक curve है, this is sublimation of ice. ये किसी Vaporization. होगा. Then you have कहाँ है? Vaporization. You'll have sublimation, vaporization और fusion. Melting. Fusion बोलते हैं हम उसको. So And meta curve. Metastable curve. और ये OD will be और metastable curve. हर एक line will be monovariant, right? And last is triple point. हाँ, यहाँ पे ये सही है. देखो, यहाँ पे ये लोग ने सही किया. This they have done correct. It's not variant. बस इतना सही. So यहाँ पे देखो एरिया 1 2 3, कर्व 1 2 3 4, ट्रिपल पॉइंट 1. कितना मीडियम? बाई वेरिएंट, मोनो वेरिएंट, नॉन वेरिएंट. बस इतना सही. इज ओके? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. बस इतना सा है. इसका मतलब है कि तुम्हारा वाटर का फेज डायग्राम खत्म हो गया है. 1 सेकेंड.